Again, good evening, class. Our recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. Our today's topic is linear equation in two variable, right? So, today we will discuss solution of linear equation, right? Just wait. Solution of linear equation in two variable, right? Second topic is we will discuss about graph. That is very important, right? And after that, let me clear in chat box that my voice is audible to you clearly. मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? Okay. Yes, let us start the topic. So in previous class we have learnt about, सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन क्या होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, राइट? व्हाट इज एक्सप्रेशन? आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट इक्वेशन, राइट? ओके. और इक्वेशन में इससे पहले आपने वन वेरिएबल का इक्वेशन क्लास 8 या 7 में आपने पढ़ा होगा, राइट? बट in class 9 you have to read linear equation in two variable. So this is our topic. Last class was introductory class. Now we will start learning the solution of linear equation. Hope आपने practice set 4.1 आप solve कर लिए होंगे, right? जैसे यहाँ पे आपको बताने थे, you have to tell, for example क्वेश्चन नंबर 2 का मैं डिस्कस करता हूँ. एक क्वेश्चन, express the following linear equation in the form ax plus by plus c is equal to 0. So for example, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं लेता हूँ x minus y by 5 minus 10 is equal to 0. You have to take LCM. LCM आप लोगे, LCM 5 आएगी, 5x minus y minus 5 10 जा 50 is equal to 0. After cross multiplication, you will get 5x minus y minus 50 is equal to 0, right? आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये 5 क्या हो जाएगी, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के कैंसल आउट हो जाएगी, राइट? सो दिस इक्वेशन यू कैन कंपेयर ax plus by plus c is equal to 0. So tell me the answer in the chat box. What is the value of a, b and c for this equation? You have to tell the answer of a, b and c. You can separate a, b, c using comma, right? So one answer in the chat box that the value of a is 5. So of course this is ax. So a के जगह पे यहाँ पे 5 है. Very good. by. Okay, so y over here and minus y. Minus y का मतलब क्या हुआ? Minus y means y is multiplied by minus 1. Okay, so y की यहाँ b से multiply है. So the value of b is minus 1 and the value of c is minus 50. You have to mention sign. Okay, so all the three answer in the chat box are correct. I encourage more students to participate in the question answer session, right? जब भी मैं आपसे कुछ पूछूं तो अधिक से अधिक लोग आंसर करने की कोशिश करें, so that class will become interacting, right? Now let us discuss solution of a linear equation. linear equation की solution के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. For example, now the topic is solution of
linear equation. So I'm just writing. Let us suppose 2x plus 5x is equal to 60 ले लेते हैं. ओके, टू एक्स प्लस यहाँ पे 5y, राइट. देयर इज एन इक्वेशन, यहाँ पे एक इक्वेशन आपको दिया गया है, दैट इज 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 60, राइट. So this is an equation of two variable. The first one is x and the second one variable is y. Okay. तो यहाँ पे x की बहुत सारी वैल्यू होगी, जैसे 2 is multiplied by 5 is equal to 10 and 5 is multiplied by 10 is equal to 60, right. 2 is multiplied by 5, 2 5 is 10 plus 5 10 is 50 is equal to 60. So the one value of x and y is 5 and 10. Similarly, you can also tell that अगर हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, 10 टू जा 20 हो गया. अब मुझे क्या चाहिए, 40. तो 5 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट एज 60. ओके, तो ये क्या है, दिस इज एन इक्वेशन. इस इक्वेशन का पहला, हाँ, यहाँ पे वेरिएबल की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है. ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने पहला पॉसिबिलिटी हमने हीट एंड ट्रायल मेथड से, हमने क्या फॉलो किया, हीट एंड ट्रायल मेथड इसे बोलते हैं, राइट. कि आपने 0 1 2 कुछ पुट करके देखा and you get the LHS is equal to RHS. The first set is 5, 10 that satisfy the equation. Second set is 10, 8 that satisfy the equation. Okay. So इसके अलावा और आप भी x और y की कुछ वैल्यूज फाइंड कर सकते हो जो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, राइट. ओके, सो ये हमारा क्या हुआ, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लेट अस गो टू द बुक. सो यहाँ पे आपके बुक में एक इक्वेशन दी गई है, दैट इज आई थिंक इंटरनेट इज लिटिल बिट स्लो, आप स्क्रीन रियल टाइम में नहीं दिख रही है. सो जस्ट वेट for a few seconds. I am going to swap my network. Okay, please wait for a few seconds. Hope I am audible to you clearly. Yes. Yes, sir. Okay. Can they both variable have same value? Yes, you can find. Actually, मैं यहाँ पे दो फाइंड किया. ओके, दिस इज सिंपली हीट एंड ट्रायल मेथड. यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स नहीं है, राइट. सो लेट अस सपोज हम कुछ और वैल्यूज लेते हैं. ओके, आप फाइंड कर सकते हो. Let us suppose 2 is multiplied by 15, right, plus 5 is multiplied by 15 2 is 30 हो गया. तो मुझे 30 चाहिए. 5 6 is 30 is equal to 60. बट यहाँ पे आपका आंसर, आपका क्वेश्चन यह था कि कैन द बोथ वैल्यू विल बी सेम. तो मैं यहाँ पे वो भी आपको बताता हूँ. इफ both value will be same then x is equal to
y, right? So either you can put x in place of y or y in place of x. तो मैं y के जगह पे अब क्या लिखता हूँ, x. तो 5y को 5x लिखता हूँ इज इक्वल टू 60. तो 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 60. x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 7, ओके, इज इक्वल टू y. तो अगर x और y की वैल्यू 60/7 आएगी तो आपका वैल्यू क्या होना चाहिए, 60. तो यहाँ पे हम देखते हैं. सो लेट मी इरेज. तो यहाँ पे शायद 62 जा 120 और 65 जा 300, ओके. तो 420 डिवाइडेड बाय 7 आपको आएगा, ओके. सो यहाँ पे आपका एलसीएम 7 ऑलरेडी है डिनोमिनेटर में. 62 जा 120 प्लस 65 जा 300, दैट इज 420/7 is equal to 60. That is your RHS, right? So when the value of x and y is equal to 60/7, then means ये equal वाला है जो आपने पूछा, right? So let us discuss some. uh, let us go to your textbook, right? मैं आपका चैट बॉक्स चेक कर लेता हूँ, ओके. हाँ, अगर आपको बीच में कुछ क्वेरी होगी तो यू, राइट. लेट अस सपोज कुछ क्वेश्चन हम बुक के एग्जांपल पे करते हैं. एग्जांपल नंबर 3. So find two solution for each of the following equation. Okay, 4x plus 3y is equal to 12, right? 4x is equal to 12. Actually, my screen is freezing, so I'm going to left the session and I will be joining again. So wait for a for 30-40 second, right? मेरा स्क्रीन फ्रीज कर रहा है, that's why I am leaving the session. और मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ. Just wait for a few seconds. Hope my screen is visible to you and my voice is audible to you clearly. Okay, there is some network issue. Let us discuss about this equation. Okay, we have to find the solution of this equation. Okay, so यहाँ पे आप क्या put करोगे? So we have to get 12. Okay, so मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ. Okay, जब आप बड़े होके when you prepare for some competitive examination,
ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड आए हैं इस टाइप के इक्वेशन के। कैन एक्चुअली मैं यहाँ पे ओके, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज जस्ट द इक्वेशन। ओके, अगर आप मान लो दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इज पर्सन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 3 मीन जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स कुछ ऐसा चीज है जो डेसिमल में नहीं हो सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल दो क्लास में, एक क्लास में 40 स्टूडेंट है और एक क्लास में 60 स्टूडेंट है। ओके, तो अगर स्टूडेंट एक्सचेंज होंगे तो वो हमेशा इंटीजर में होंगे, राइट। सो यहाँ पे मैं कुछ मेंशन नहीं किया हूँ दैट एक्स एंड वाई इज डेसिमल और फ्रैक्शन। ओके, सो इट मे बी डेसिमल, इंटीजर, फ्रैक्शन। ओके, यहाँ पे अभी हमें समझना है बस चीजों को। सो एक्स का वैल्यू सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, राइट। तो 4 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ओके, तो 3y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8/3। मीन्स ये आपका क्या आ गया, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ओके, तो लेट अस सपोज करते हैं अभी हम इंटीजर का ही बात करते हैं, राइट। सो ऐसे जब आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करोगे, so when you multiply 4 and 3 you will get 12। तो 12 तो आपको मिल गया, तो y की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ y शुड बी 0, राइट। सो x की वैल्यू 3 पे, y की वैल्यू क्या आई, 0। सिमिलरली y can be, sorry, x can be 0 and y can be 4 is equal to 12। तो जब भी आपको लीनियर इक्वेशन तो वेरिएबल की टू सॉल्यूशन फाइंड करने दिया जाए, तो सबसे पहले क्या करोगे, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड y इज इक्वल टू 0। ये x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 का रियल मीनिंग क्या है, वी विल लर्न आफ्टर ग्राफ। ओके, ग्राफ के डिस्कशन के बाद हम लोग देखेंगे कि x इज इक्वल टू 0 का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है, राइट। इसके अलावा इसकी और भी वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हो, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ओके, सो ये टॉपिक को हम यहाँ पे मैं एक्सरसाइज 4.2 पे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। आफ्टर वी विल डिस्कस दिस। ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको आगे एक्सरसाइज 4.2। Which one of the following option is true and why? Y is equal to 3x plus 5 has. There are three options. Actually, मेरी स्क्रीन फिर से फ्रीज हो गई। आपको स्क्रीन अच्छे से दिख नहीं रही है। लेट मी अगेन प्रेजेंट माय स्क्रीन। अगर इसी तरीके से नेटवर्क इशू होगी तो प्रोबेबली वी हैव टू कैंसिल द क्लास। Just wait, screen will visible to you. Yes. So I am going to discuss question number 1. The question is, which one of the following option is true and why? Equation is given as y is equal to 3x plus 5. तो आपको बताना है कि इस इक्वेशन की यूनिक सॉल्यूशन होगी या सिर्फ टू सॉल्यूशंस होगी और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। There are three options given.
मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज 3x इज इक्वल टू 12 ऐसा दिया गया है। ओके, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू सिर्फ 4 आएगी। ओके, 4 के अलावा कोई भी वैल्यू नहीं आएगा आपको। सो दिस इज यूनिक सॉल्यूशन, राइट, दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। इसी तरीके से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कभी ऐसा होगा जहां पे आपको सिर्फ 2 सॉल्यूशंस ही आएगी, बट इन दिस केस द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो x और y की वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो। ओके, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कोई भी कुछ भी डाल सकते हो। सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, राइट। सो चैट बॉक्स में आपके आंसर्स भी आ चुके हैं। नाउ लेट अस डिस्कस question number 2. Question number 2 says that write 4 solution for each of the following equation. पहला इक्वेशन है 2x plus y is equal to 7. Second is pi x is plus y is equal to 9. And third is x is equal to 4y. So let us discuss question number 2. यहाँ पे पाई दिया गया है तो कुछ लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग रहा होगा। पाई x plus y is equal to 9, right? Let me erase. Pi x plus y is equal to 9, right? So we have to find 4 solution, right? We have to find 4 solution. Pi x plus y is equal to 9, right? तो पाई की वैल्यू क्या होती है, हम 22/7 लेंगे। x प्लस y इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन में देख लेता हूं मैं कि यहाँ पे आपको कुछ मेंशन भी किया है। ओके, लेट अस सपोज यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया रहता है कि यू हैव टू फाइंड ओनली इंटीजर वैल्यू। ओके, तो आपको सिर्फ इंटीजर देखना होगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है, सो वी कैन गो फॉर फ्रैक्शनल वैल्यू आल्सो। ओके, तो मुझे आरएचएस में 9 लानी है। ओके, तो देखते हैं कि कैसे करेंगे, राइट। तो 22 डिवाइडेड बाई 7, एक्स की जगह पे मैं 7 डाल दिया तो मुझे क्या मिला अभी तक 22, और मुझे लानी कितनी है 9। तो 22 में से आई विल सब्सट्रैक्ट समथिंग एंड वी विल गेट 9। सो when you subtract 23 minus 13, then you will get as 9. So the first case is what? The first in the first case, you get x is equal to 7 and y is equal to minus 13. आपने चैट बॉक्स में भी आंसर किया है, वेरी गुड, यस। सो यहाँ पे x और y की वैल्यू आए। सो इसी तरीके से हम लेट अस सपोज x का वैल्यू में 0 डालता हूं, राइट। सो y should be what? Y should be 9, so that we get 9 as RHS। तो यहाँ पे 0,9 आए। सो मैं यहाँ पे 2 वैल्यू आपको बता दिया। सो टेल मी इन द चैट बॉक्स वन अनदर वैल्यू। तीसरा वैल्यू आपको चैट बॉक्स में ढूंढ करके बताने हैं। दैट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y, for what value of x and y the equation pi x plus y is equal to 9। x और y की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन की RHS 9 होगी, मीन्स x और y का कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो मैंने आपको पहला हिंट दिया, दैट इज 7 कॉमन माइनस 13।
सेकेंड इज 0,9 और मैं आपका चैट बॉक्स देखता हूं कि आपने क्या क्या आंसर किए। So let us check whether 14 comma minus 35 is 14 प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा -35 7 2 जा 14 22 जा 44 -35 is equal to 9 so sorry 14 comma -35 यहाँ पे क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है। अगला आंसर चैट बॉक्स में आया है 21 and 57 so let us check 22 divided by 7 into 21 7 3 जा 21 तो हमें 66 आई तो 66 में से अगर हम if we subtract 57 then we'll get as 9 so the fourth value is 21 comma minus 57 अभी तक हमारा सारा वैल्यूज इंटीजर ही है राइट। लेट अस गो टू द 49 comma 145 एक दो और हम चेक कर लेते हैं सो डैट आपको भी चीजें क्लियर होगी डैट 49 एंड -145 7 7 जा 49 एंड 22 7 जा 154 so 154 minus 145 is 9 so 49 comma minus 45 is also correct right so अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं बचा सो एक यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ फ्रैक्शनल वैल्यू को मैं डिस्कस नहीं करूंगा 22/7 into 70 that is 22 7 जा 154 70 सॉरी 10 220 आएगा एंड 220 minus 211 is equal to 9 very good so 70 comma minus 211 is also a value of x and y that satisfy the equation pi x plus y is equal to 9 so अगर मैं आपसे अगर पूछूं if x y belongs to a whole number right अगर x और y की वैल्यू होल नंबर होगी तो आउट ऑफ दिस 6 यहाँ पे 6 वैल्यूज आई है तो कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी ओके अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दिया डैट जो आपकी x और y की वैल्यू होगी वो होल नंबर होगी राइट सो which condition will satisfy please answer in the chat box I expect answer from each and everyone मैं सभी लोगों से आंसर एक्सपेक्ट करता हूं 0,9 राइट सो यहाँ पे आप देख रहे हो 7 -13 y इज -13 सो y यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगा द फर्स्ट वैल्यू विल एक्सक्लूड in second value 0 and 9 is whole number so it may be our answer right 14 -35 ये माइनस की वजह से इसका ये हट गया 21 -57 यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस आपको दिख रहा है ओके ये second one is this the value of x is equal to 0 and y is equal to 9 will satisfy ओके जब x और y आपको होल नंबर दिया रहेगा इसके अब-
क्लियरली मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? और मैं वॉइस ब्रेक, ओके, मैं वॉइस ब्रेकिंग अदर now I am audible clearly. मेरी आवाज आपको अच्छे से सुनाई दे रही है? If I am audible clearly, then type in the okay. The thing. So, for a few time to uh, uh,